Hello everyone, welcome back to my channel. I am Garima Singh and in today's video we'll be continuing with the chapter number 3 and we'll learn about the main system of indigo cultivation. We'll be continuing today with our third chapter, which is all about the ruling the countryside. This is the last part of this chapter, guys. Until now we have covered why the Britishers now wanted to rule the countryside, along with that various land revenue system which they have introduced around the countryside in order to generate the revenue system, and also about how the Britishers now force the peasants to cultivate the crops for Europe. And among those crops, two important crops we have discussed, and one was indigo. And we have also learned about the story behind this color. Okay, today we'll be studying how this indigo was cultivated, about the two major system of cultivation, and what were the conditions that led to the Blue Rebellion here in India. Okay, so moving ahead with today's video, our first subtitle says, how was indigo cultivated? इंडिगो की खेती कैसे की जाती थी, इंडिगो कैसे उगाया जाता था, right? So talking about the indigo cultivation, we basically had two main system under which the indigo was cultivated. दो major system थे जिसके हिसाब से इंडिगो की खेती होती थी. नील की खेती, indigo is नील, and this color was used for dyeing the clothes in blue color, rich blue color, right? I hope you remember. So talking about the two main system, these were the Nij system and the Royti system. Okay, so we'll be studying each system in brief and we'll see what were the problems with each of this system. Talking about the very first system, which is all about niche cultivation. Okay, niche cultivation क्या थी? मतलब यहाँ जो प्लांटर है जो इंडिगो की खेती करेगा वो डायरेक्टली उस जमीन पे करेगा जो वो खुद कंट्रोल करता है. ओके, या तो वो किसी से जमीन खरीद लेगा या किसी को रेंट कर देगा, रेंट पे देगा. ओके, तो इससे क्या रहेगा, मेन जो कंट्रोल है वो किसका है, प्लांटर के खुद का है. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ प्लांटर, मुझे इंडिगो कल्टीवेशन करनी है, तो निज कल्टीवेशन क्या है, मैं खुद की ज़मीन पे ही इंडिगो उगाऊं या फिर मैं उस ज़मीन को रेंट पे दे दूं, भी बाकी कोई इस पे इंडिगो उगाएंगे, राइट? लेकिन मेन कंट्रोल किसका है उस लैंड पे, मेरा, बिकॉज आई एम द प्लांटर, आई एम द ओनर ऑफ दिस लैंड. ओके, सो व्हेन द प्लांटर और द ओनर directly control the land on which the indigo was cultivated, it was called the niche cultivation. I hope it is clear. So let's see the textual part, what is written here. Niche cultivation was all about when the planter produced indigo on the land that he directly controlled. Okay, now second point given here is he either bought the land or rented it from zamindars and produced indigo by directly hiring labor. या तो खुद की जमीन पे खरीद के करता था या रेंटेड स्पेस पे करता था. ओके, एंड वहाँ डायरेक्टली जो इंडिगो प्रोड्यूस करते थे वो किसकी कंट्रोल के अंडर होते थे, द प्लांटर के कंट्रोल में. ओके, और इंडिगो को हमने पढ़ा है, इंडिगो को जो प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं, इंडिगो इज वन अमंग द प्लांटेशन क्रॉप्स. जब हम प्लांटेशन क्रॉप्स की खेती करते हैं, उनको कल्टीवेट करते हैं, तो वी रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर along with that cheap labor. ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग रिक्वायर्ड है, स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड रहती है, इसलिए प्रोड्यूसर क्या करता था, प्लांटर क्या करता है, डायरेक्टली लेबर्स को हायर करता था और उनको इंडिगो कल्टीवेशन के अंदर लगा देता था. So after understanding what the niche cultivation was, let's see what was the major problems with the niche cultivation. निच कल्टीवेशन जो एक इंडिगो कल्टीवेशन का टाइप है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या दिक्कत थी. ओके, नंबर वन प्रॉब्लम वाज difficult to expand the area as indigo could be grown on fertile land and the fertile land was already densely populated. Okay, क्योंकि इंडिगो की खेती में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, राइट? तो मेजर प्रॉब्लम क्या थी कि लोगों के पास ज़मीन नहीं थी एक्सपैंड करने के लिए. वो चाहते ज़्यादा ज़मीन हो, ज़्यादा खेती करें, ज़्यादा खेती करेंगे ज़्यादा फसल उगेगी, ज़्यादा पैसा आएगा, राइट?
लेकिन मेजर प्रॉब्लम क्या है, एरिया जो है, लैंड का एरिया है वो इंक्रीज नहीं हो पा रहा था, एक्सपैंड नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि जो इंडिगो की खेती है, इंडिगो एज अ क्रॉप कुड बी ग्रोन ओनली ऑन अ फर्टाइल लैंड, बहुत ही फर्टाइल लैंड पे उगाई जा सकती थी। ओके, लेकिन जितने भी फर्टाइल लैंड थी वो पहले से ही वहां इतनी ज्यादा पॉपुलेशन रहती थी कि दैट फर्टाइल लैंड एरिया वाज ऑलरेडी पॉपुलेटेड। Okay, therefore they did not had the area to expand. So this was the number one problem. Second problem was, and फिर उनको लार्ज एरिया की अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो क्या करते थे, दे अटेम्प्टेड टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री एंड evict the peasant from there. उन्होंने जो फैक्ट्री के अराउंड जो लैंड होती थी उसको लीज पे लेना स्टार्ट कर दिया। लीज से मतलब रेंट पे लेना स्टार्ट कर दिया। अब कोई जमीन रेंट के लिए ले लेगा तो जो पीजेंट है वो उस पर कल्टीवेट नहीं कर पाएगा, सिंपल है, क्योंकि उसने तो रेंट पे दे दी, लीज पे दे दिए वो। तो जिसकी वजह से पीजेंट्स को वहां से इविक्ट कर दिया, निकाला जाता था, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट और टेंशंस अराइज हो गई बिटवीन दी पीपल, which people, the Britishers and the peasant, the farmers. Okay, बहुत ज़्यादा विवाद हो गए, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गए उनके बीच में। पीजेंट्स बोलते थे हमारी ज़मीन है, वी नीड टू कल्टिवेट हियर। ओके, लेकिन क्योंकि उनको अपना इंडिगो की कल्टिवेशन एक्सपैंड करनी थी एंड दे रिक्वायर्ड लैंड, सो इन ऑर्डर टू fulfill the condition of large area, large land, they used to evict the peasants from their land, leading to the conflict and tensions in the environment. The problem was the land was not available to them. Okay, and the second major problem with niche cultivation was the labor was not mobile. Labor not mobile मतलब इट मीन्स कि लेबर को इजिली एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता था। ओके, बिकॉज द सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वॉज नॉट दैट गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट, अनदर प्रॉब्लम व्हाई लेबर वॉज नॉट मोबाइल is because this was the season when the farmers or the peasants used to cultivate rice. चावल की खेती करते थे इस टाइम पे, and again cultivation of rice required a number of labor in order to make the cultivation and harvest the crop. चावल की खेती क्या है, पहले जब हम उसकी छोटे छोटे जो प्लांट धान लगाते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा लेबर रिक्वायर्ड है। जाके फील्ड में सीड्स को, वो धान को लगाना इज अ टास्क। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट तब राइस पक के तैयार हो गया, उसके बाद उस क्रॉप को हार्वेस्ट करने के लिए भी लेबर चाहिए, इसलिए लेबर वॉज नॉट वेरी मच अवेलेबल इन अ good amount at that period. Okay, and indigo being an plantation crop, it required a large number of labor, right? तो ना तो जमीन है ना उनके पास लेबर है। ओके, लेबर क्यों नहीं है, एक तो मोबाइल नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह हम नहीं लेके जा सकते। हियर मोबाइल मतलब नॉट मूवेबल। ओके, मूव के लिए मोबाइल वर्ड यूज होता है, इट्स नॉट यूज्ड हियर फॉर योर सेल फोन्स। ओके गाइज, देन अनदर रीजन लेबर क्यों नहीं मूव कर सकती थी, बिकॉज दैट वाज द पीरियड ऑफ राइस कल्टीवेशन। राइस कल्टीवेशन के लिए भी लेबर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती थी, इसलिए लेबर तो अवेलेबल नहीं थी। ओके, जो दो बेसिक कंडीशन है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, दैट वाज लैंड एंड द लेबर, बोथ वर नॉट फुलफिल्ड। ओके, नाउ talking about the niche cultivation, in order to carry out this type of cultivation, they required ploughs and bullocks. Ploughs क्या होते हैं, खेत बहाने के लिए, जमीन बहाने के लिए, it is one of the equipment. If you want to see what kind of equipment it is, you can just Google the image so that the idea is clear to you. Bullocks are the cows or the buffaloes used to plough the field. Okay, then the land was divided as per the unit of measurement which was called बीघा. Okay, एक बीघा लैंड को कल्टीवेट करने के लिए अराउंड 2 प्लॉट्स चाहिए थे। Therefore, अगर 1000 बीघा ऑफ लैंड है किसी के पास तो डबल द प्लॉट्स चाहिए। सिंपल मैथमेटिक्स है, 2000 प्लॉट्स चाहिए। ओके, therefore, in order to buy this plots and the bullocks, it required a huge amount of money to be invested.
पैसा तो खर्च करना पड़ता ना, कि ब्लॉक खरीदना है, ब्लॉक्स भी चाहिए फिर उसको चलाने के लिए. Therefore, another problem was that this type of cultivation was a expensive type of cultivation. Okay, because it required a amount of money to be invested in the plows and the bullocks in order to carry out this type of cultivation, which was niche cultivation. Okay, now you must be thinking, what is this bigha? इतना तो मैंने बताया, दिस इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड. एक यूनिट है जिसके हिसाब से हम लैंड को मेजर करते हैं. ओके, सो लेट्स सी इन ब्रीफ व्हाट इज दिस वैल्यू इक्वल टू. So talking about this term bigha, as I told you, it is a unit of measurement of land, and before the British rule, the size of the area varied. जब तक ब्रिटिश रूल नहीं आए थे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग साइज होती थी एक यूनिट के अंदर. Therefore, what the Britishers did here in Bengal, they standardized it all over the region. भाई एक बीघा मतलब एक ही जितना अमाउंट ऑफ लैंड. ठीक है, पहले तो वैरी करता था, अब उन्होंने आके एक यूनिट डिफाइन कर दी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि 1 लीटर ऑफ वाटर कितना आएगी, भाई 2 ग्लास आएंगे उसमें. ओके, तो मतलब 2 ग्लास ही आएंगे पूरे रीजन में. ऐसा नहीं है कहीं 1 लीटर में 2 ग्लास आ रहे हैं पानी के, 1 लीटर में कहीं 5 ग्लास आ रहे हैं. ओके, तो स्टैंडर्डाइज कर दिया, उसकी यूनिट को हमने फिक्स कर दिया. ओके, एंड द वैल्यू ऑफ बीघा वाज 1 बीघा was equal to 1/3 of an acre. एकड़ तो सुना होगा, acres of land. Okay, 1/3 हिस्सा of 1 acre of land was equal to 1 बीघा. Okay, due to all of this problem of land, labor and the investment, the peasants were now reluctant to expand the area under niche cultivation. इसीलिए जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, वो मना कर रहे थे, हम निच कल्टीवेशन के अंडर अपना एरिया नहीं बढ़ाएंगे फॉर द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो. एंड देयरफॉर एट दैट टाइम लेस देन 25% ऑफ लैंड वर अंडर इंडिगो कल्टीवेशन. इसीलिए 25% भी टोटल एरिया ऑफ लैंड नहीं था जो जहाँ इंडिगो उगाई जाती थी. सो आप सोच रहे होंगे, अगर लेस देन 25% ऑफ लैंड वॉज अंडर द कल्टिवेशन ऑफ निच कल्टिवेशन, ओके, निच सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन, सो व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द लैंड? द रेस्ट ऑफ द लैंड एरिया वॉज अंडर द रॉयल्टी सिस्टम. एंड लेट्स सी व्हाट वॉज दिस रॉयल्टी सिस्टम. बिफोर मूविंग अहेड, let me just So before moving on to the royalty system, let's quickly revise the niche cultivation system. Niche cultivation system क्या है? एक ऐसा सिस्टम ऑफ इंडिगो फार्मिंग जहाँ जो लैंड होगी, जो प्लांटर की लैंड है, दैट विल बी डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्लांटर. जो उस पर खेती करेगा, जो प्लांटेशन ओनर है, उसी का कंट्रोल रहेगा लैंड के ऊपर. ओके, फिर हमने पढ़ा कि इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी. मेजर प्रॉब्लम्स क्या थी? लैंड नहीं थे एक्सपैंड करने को, लेबर की प्रॉब्लम थी और इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम थी. इसलिए जो जितने भी फार्मर्स थे, दे वर नॉट विलिंग टू एक्सपैंड द एरिया अंडर द निच कल्टीवेशन. इसी करके सिर्फ 25% से भी कम एरिया जो कि निच कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन के अंडर आता था. अब हम बात करेंगे, अगर 25% तक का एरिया निच कल्टीवेशन के अंडर था, तो बाकी का जो 75% ऑफ एरिया है वो कौन सी सिस्टम के अंडर था? इट वॉज अंडर द अनदर मेजर सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, विच इज द रॉयल्टी सिस्टम. सो द नेक्स्ट इज द रॉयल्टी कल्टीवेशन. निच कल्टीवेशन में हमने पढ़ लिया कैसे कुछ इंडिगो कल्टीवेशन करवाते थे प्लांटर्स. प्लांटर्स कौन है? द ब्रिटिशर्स. ओके, अब देखते हैं रॉयल्टी सिस्टम के अंडर प्लांटर्स कैसे अपनी खेती करवाते थे इंडिगो की. So here, under this system of cultivation, the planters used to force the royals. रोयत वाली सिस्टम किया था हमने. रोयत्स कौन है यहाँ? The farmers or the peasants, right? उनको फोर्स करते थे to sign a contract or an agreement. उनसे एक साइन करवा लेते थे कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट, जिसको सत्ता भी बोलते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट वाज दिस अग्रीमेंट ऑल अबाउट. ओके, लेकिन उससे पहले हम ये भी देखेंगे, नॉट ओनली द रॉयल्स वर प्रेशराइज्ड और फोर्स्ड बाय द प्लांटर्स, बट एट टाइम्स इवन द प्लांटर्स
प्रेशराइज द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। क्या करते थे, जो विलेज का मुखिया होता था, गांव का मुखिया, उससे ही कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लेते थे और बोलते थे कि अब जो भी होगा, यहाँ जो भी प्लांटेशन कैरी आउट की जाएगी वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे कैरी आउट की जाएगी। ओके, नाउ लेट्स सी अब क्या था ये अग्रीमेंट। सो ये जो अग्रीमेंट साइन करवाते थे फ्रॉम द विलेज हेडमैन और द रॉयट्स, इसके अंदर क्या था, अग्रीमेंट साइन करवाया प्लांटर्स ने और फार्मर्स को वो एडवांस में कैश दे देते थे, पैसे दे देते थे एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेसिकली ये एक लोन की तरह था। ओके, भाई पैसे नहीं है क्योंकि निज सिस्टम में हमने देखा उसके ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी इन ऑर्डर टू बाय प्लॉट्स। ओके, तो उस पैसे की कमी को ओवरकम करने के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट के चलते जो प्लांटर है वो एडवांस में कैश दे देगा एट अ वेरी लो इंटरेस्ट रेट। बेसिकली एक तरह का लोन है, फार्मर्स को लोन दे दिया, बोला ये पैसे हैं, नाउ यू नीड टू कैरी आउट द कल्टीवेशन, गो एंड बाय द equipments that you require to carry out the cultivation. Okay, and major thing in this contract was that the peasants were asked to cultivate at least on 25% of the land. ओके, क्या बोला कि इस कॉन्ट्रैक्ट के चलते तुम्हें पैसे एडवांस में लोन भी दे रहे हैं, इसके अलावा एक और मेजर कंडीशन है। कंडीशन ये है कि एटलीस्ट तुम्हारी जमीन का 25% जो हिस्सा है विच इज द 1/4 ऑफ योर टोटल लैंड, उसके ऊपर इंडिगो की खेती होनी चाहिए। ओके, इंडिगो ही उगेगा। सो बेसिकली खेती कैसी होगी, जो प्लांटर्स हैं वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सीड्स एंड द ड्रिल। सीड्स बीज दे दिए इंडिगो के और ड्रिल बता दी भाई तुम्हें कैसे खेती करनी है, राइट। लेकिन जो पीजेंट्स हैं उनको क्या करना पड़ रहा है, उनको पहले सॉइल तैयार करना है, फिर दे हैव टू सो द सीड्स। ओके, फिर बिजाई करनी है, उसके बाद लुक आफ्टर द क्रॉप्स, फसलों का ध्यान भी रखना है। एंड वंस व्हेन द क्रॉप्स वर डिलीवर्ड, जब क्रॉप्स दे देते थे जाके वापस उनको प्लांटर्स को, तो फिर से एक नया लोन साइन करवा लेते थे। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी यहाँ। इन योर 8th क्लास व्हेन वी वर स्टडिंग योर सिविक्स वाला 1 चैप्टर, इन दैट चैप्टर हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो किससे लोन लेते हैं, बड़े बड़े लैंड ऑनर्स से। एडवांस में उनको पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन कंडीशन क्या रहती है, जो फसल उगेगी वो उन्हीं को वापस जाके बेचना होता है जिनसे वो लोन लेते हैं, राइट। आई होप यू रिमेंबर द स्टोरी। सिमिलरली यहाँ था, क्या हुआ, लोन दे दिया, अब जो फसल उगी है, इंडिगो के कितने ज़्यादा हाई प्राइजेस थे उस टाइम पे, लेकिन द प्लांटर्स, द ब्रिटिशर्स वर वेरी क्लेवर, उन्होंने लोन दिया। अब जब आके फसल वापस बेचेंगे वो लोन का कुछ हिस्सा ही पे कर पाए, तो बदले में तब फसल बेचने आए उसी टाइम एक नया लोन साइन करवा लिया, भाई अभी खेती खत्म, अगले साल की खेती के लिए साइन कर लो, ये पैसे हैं। ओके, एंड फार्मर बीइंग पुअर, ही वॉज ऑलवेज इन द नीड ऑफ मनी, रहते ही हैं भाई, किसान को पैसे तो चाहिए घर चलाने के लिए, उस चक्कर में वो पैसे ले लेते थे। देयरफॉर एक पर्टिकुलर ट्रैप बन गया, लोन के बाद लोन लो, थोड़ा सा चुकता करो, इतने नया लोन साइन हो जाए। ओके, सो दिस वाज बेसिकली अ ट्रैप फॉर द पीजेंट्स हियर। सो बेसिकली हमने क्या पढ़ा, दैट इनिशियली द पीजेंट्स वर टेम्प्टेड बाय द लोन्स, उनको मजा आ रहा था क्योंकि पैसे मिल रहे थे एडवांस में, बट सोन दे रियलाइज्ड हाउ हार्श दिस सिस्टम वाज एंड द साइकिल ऑफ लोन्स नेवर एंडेड। उन्होंने रियलाइज किया कि ये सिस्टम ऑफ टेकिंग लोन प्रायर द हार्वेस्ट was a very harsh system, जिसके चलते उनको अपनी क्रॉप्स बहुत ही कम दाम पे बेचनी पड़ती थी। ओके, एंड ऑल्सो द सिस्टम और द साइकिल ऑफ लोन्स was never ending, एक पूरा ट्रैप बन गया था। Therefore, this is the figure I have made to explain this condition. Suppose यहाँ ये टाइम है जब प्लांटर्स ने पीजेंट्स को लोन दिया। ओके, लोन दिया, उन्होंने पूरी कल्टीवेशन की, हार्वेस्ट करके वापस ब्रिटिशर्स को दिया, लेकिन जब वो हार्वेस्ट कंप्लीट हो जाती थी वो फिर से एक लोन साइन करवा देते थे। लोन साइन हो गया, फिर से हार्वेस्ट कंटिन्यू करो, हार्वेस्ट कर वापस देने आते, फिर से एक लोन। तो देयरफॉर इट वाज मोर लाइक अ साइकिल विच नेवर एंडेड, जो कभी खत्म नहीं होने वाला था। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द रॉयल्टी सिस्टम। तो हमने अभी तक क्या समझा कि रॉयल्टी सिस्टम क्या था। ओके, कि वो
प्लांटर्स जो है पीजेंट्स या रॉयट्स या विलेज हेडमैन से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते थे। कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता था, सत्ता क्या बोलता था कि तुम्हें एडवांस में पैसे मिल जाएंगे और उसके साथ साथ तुम्हें 25% ऑन योर लैंड इंडिगो कल्टीवेशन करनी है। ओके, तो उसके बाद हमने मेजर प्रॉब्लम देखी रॉयल्टी सिस्टम में कि एक जो लोन का साइकिल था वो बहुत कंटिन्यूस बन गया। एक तो ये प्रॉब्लम हुई उस सिस्टम में, दूसरी और क्या प्रॉब्लम थी, मेजर अदर प्रॉब्लम्स हुआ इंडिगो। हमें पता है इंडिगो जो प्लांटेशन होगी इसकी वो एक फर्टाइल सॉइल पे होगी एंड फर्टाइल सॉइल इज द बेस्ट सॉइल फॉर द क्रॉप्स। देयरफॉर ये वो फर्टाइल सॉइल है जहां द फार्मर्स यूज्ड टू कल्टीवेट द राइस। अब जहां वो अपने चावल की खेती करते थे वहां पे वही सबसे बेस्ट जो फर्टाइल सॉइल होता था उस पे अब प्लांटर्स क्या करवा रहे थे, इंडिगो कल्टीवेट करवा रहे थे। ओके, आप सोच रहे होगे कि प्रॉब्लम कहाँ से है, खेत का सिर्फ 1/4 हिस्से पे तो कल्टीवेट करना था, ओनली 25%, तो कर देते उस पे कल्टीवेट। सो लेट्स सी व्हाट वाज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू इट। एक तो है एरिया फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस डिक्रीज हो गया है, दूसरा जो इंडिगो प्लांट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा डीप रूट्स होती हैं। जितनी ज़्यादा डीप रूट्स होंगी, जड़ें मजबूत होंगी और नीचे सॉइल में जाएंगी, उतना ज़्यादा सॉइल पे उनका प्रेशर आएगा। कल्टीवेट हो रहे हैं, फर्टाइल सॉइल है, तो सारे मिनरल्स इंडिगो को ही चल जाते थे। देयरफॉर डीप रूट्स की वजह से सॉइल जो है वो एग्जॉस्ट हो जाता था, उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती थी। एंड सॉइल बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, ओके, इट रिक्वायर्स टाइम टू रीजनरेट इटसेल्फ। उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ताकि वो फिर से फर्टाइल हो सके, रीजनरेट हो सके उसके मिनरल्स। ओके, देयरफॉर सॉइल जब एग्जॉस्ट हो जाता था इंडिगो कल्टीवेशन के बाद, जो लैंड थी वो लैंड वॉज नॉट एबल और फर्टाइल इनफ दैट इट कुड बेयर अनदर कल्टीवेशन विच वॉज ऑफ राइस। अब ये नहीं है भाई इंडिगो की खेती कर ली उसके बाद लगातार आप लगा दो चावल की खेती, नहीं हो पाएगा क्योंकि सॉइल जो है वो एग्जॉस्ट हो गया था। ओके, क्योंकि डीप रूट्स होती थी इंडिगो प्लांट्स की, सारे मिनरल्स और रिक्वायर्ड जो अमाउंट ऑफ ह्यूमस और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स थे वो सब यहाँ चले जाते थे। सॉइल फर्टाइल इतना नहीं रहता था और अब लैंड इतनी फर्टाइल नहीं है, तो हाउ इज इट पॉसिबल टू कल्टीवेट द राइस देयर? लगा तो लो लेकिन कोई फायदा ना होता उधर, राइट? Therefore, these were the major problems with the royalty system. I hope till now the story is clear. That's it for today's video and it's time to tone up your brain. We have covered in today's video the two major systems of indigo cultivation. Go through both the system, understand it, and after understanding and learning, make sure you comment down all the answers in your own words in the comment section along with your name. Number one question is, define the net system and the royalty system. Make sure you guys keep the definition of these terms very simple and in the crux of 3 to 4 lines. That's it. Okay. The second question is, what were the problems regarding the niche system? And last question for the day is, you need to write down the problems with the royalty system. Write down in the pointer form, सिर्फ major pointer form में लिख देना, need not to explain the entire content. And also guys, if you like my video, do not hesitate to press in the thumbs up icon. And if you are new to this channel, do not forget to like, share and subscribe to Economics Window. And thank you for watching.